نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منكم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق اللہ العظیم۔ جہانوں کی رحمت میرے مصطفیٰ ہیں، خداوند کی نعمت میرے مصطفیٰ ہیں، سراپا صداقت میرے مصطفیٰ ہیں، غریبوں کی طاقت میرے مصطفیٰ ہیں، ظلم کے مقابل عدل مصطفیٰ ہیں، زمین پر خدا کا فضل مصطفیٰ ہے، زمانے میں انسا آیا نہیں ہے، خدا نے بھی ایسا بنایا نہیں ہے، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور وہ اکیلا ہی سب کا مالک و خالق داتا و گنج بخش ہے، بگڑیوں کو بنانے والا، کشتیوں کو پار لگانے والا، مصیبتوں میں کام آنے والا، مشکل کشائی کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا، سور و پکار کے لائق، نظر و نیاز کے لائق، ہر قسم کی قربانی اور عبادات کے لائق وہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے۔ بے شمار ان گنت ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، اشیاء کی تعداد سے زیادہ درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین، امام المتقین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات گرامی پہ، جنہوں نے اس دنیا میں تشریف لا کر اس دنیا کو شرک و کفر کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کے حکم سے رشد و ہدایت کی روشنی کی طرف گامزن فرمایا۔ سامعین محترم، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت
इस अजीम महीने रबीउल अव्वल में है, तो इसी महीने की 12 तारीख को मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल है। मैं जब मुतालिया करने के लिए बैठा अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक का, तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने आका की सीरत का कहां से आगाज करूं। इस महीने में जहां पे खुशी है वहां पे गम के बादल भी छाए हुए हैं। मैंने जब कुरान को पढ़ा, कुरान को खोला, कुरान की बरगर्दानी की, तो हर पैगंबर की सीरत का आगाज मुझे उस पैगंबर की विलादत से होता हुआ नजर आया। अल्लाह अकबर। फिर मैंने अपने आका की सीरत को तलाश करना शुरू किया। मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना शुरू किया। मैंने कुरान की गर्दानी शुरू की, तो मेरे आका की सीरत का आगाज उनकी पैदाइश से, उनकी विलादत से होता हुआ नजर नहीं आया। मैंने कुरान की गर्दानी की, मैंने अहादीस को देखा, एक अलग ही मंजर नजर आया। कहीं पे मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का आगाज, उनकी सीरत का आगाज होता है उनकी विलादत के तज़किरे से। कहीं जनाब आदम अलैहिस्सलाम की सीरत का आगाज होता है उनकी बनावट के तज़किरे से। कहीं सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत का आगाज होता है उनकी विलादत से। इसी तरह बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम भी हैं, सबकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश से होता है, उनकी विलादत से होता है। लेकिन जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आती है तो अल्लाह ने अंदाज बदल दिया, अल्फाज बदल दिए, अल्लाह ने लबो लहजा बदल दिया। आवाज आई व इज अखज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ رب العالمین نے انداز بدل دیا، سارے انبیاء علیہم کو اکٹھا کیا، ان کی روحوں کو اکٹھا کیا، ان سے عہد میثاق لیا، میرے پیغمبر کی سیرت کا آغاز کیا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز عالم ارواح میں کیا۔ انبیاء علیہم السلام کو اکٹھا کر کے اللہ عہد لیتا ہے، اے میرے نبیوں کی جماعت، جب تم دنیا میں آؤ اپنی اپنی رسالت کا آغاز ہو چکا ہو، اپنی اپنی نبوت کا پرچار کر رہے ہو، اپنے اپنے انداز میں حکومت کر رہے ہو، اس وقت میرا آخری پیغمبر آ جائے، میرا آخری رسول آ جائے، میرا آخری نبی آ جائے، تم نے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ ہم کیا کریں؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے اور اس پر ایمان بھی لانا۔ اپنی اپنی کرسیوں کو چھوڑ دینا ہے، اپنی اپنی نبوتوں کو چھوڑ دینا ہے، اپنی اپنی رسالت کو خیر بات کہہ دینا ہے، میرے پیغمبر کے امتی بن جانا ہے۔ آغاز دنیا، عالم دنیا میں نبی کی پیدائش سے سیرت کا آغاز نہیں ہوا، بلکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عالم ارواح میں انبیاء سے عہد میثاق لے کر کیا گیا۔ سبحان اللہ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اعلیٰ، میرے پیغمبر کی سیرت کا آغاز کی سب سے اعلیٰ زندگیاں بیت گئیں، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ میرے اندر یہ سرکت کہاں، میرے اندر یہ ہمت کہاں، میرے اندر یہ طاقت کہاں کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر سکوں، آپ کی صورت کو بیان کر سکوں، آپ کے محاسن کو بیان کر سکوں، آپ کی خوبیوں کو بیان کر سکوں، آپ کے مناقب کو بیان کر سکوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کیا نہ ملا، کیا کیا نہ دیا، ذرے کو گوہر کر ڈالا، یہ اس کی موج ہے، جب چاہا قطرے کو سمندر کر ڈالا، کیوں کر ہو حق ادا، حق کی عنایت عظما کا ہم جیسے گنہگاروں کو مداح پیغمبر کر ڈالا۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ اللہ نے ولادت رسول کے لیے خاص جگہ کا انتخاب فرمایا، خاص ماحول کو منتخب فرمایا اور عظمت دی۔ ساری زمین میں سے جو سب سے بہترین زمین سرزمین مکہ تھی،
सरजमीन अरब थी उसको चुना, फिर अरब में से हिजाज को चुना, फिर हिजाज में से मक्का को चुना, फिर मक्का के कुरब में बेहतरीन जगह बैतुल्लाह के कुरब में अब्दुल्ला के घर को चुना। सारी इंसानियत में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया को चुना और पूरे अंबिया में से अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा को चुना सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। नबी आखिरुल ज़मा को चुना। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने चुन लिया और अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बना लिया। अल्लाह ने खिल्लत अता फरमा दी, मोहब्बत की इंतहा कर दी, पूरी कायनात का इमाम बना दिया, लोगों के लिए इमाम बना दिया। और फिर उस पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने उसकी औलाद में से इस्माइल को चुना, फिर इस्माइल में से बनु कनाना को चुना, फिर बनु कनाना में से बनु हाशिम को चुना, बनु हाशिम में से कुरैश को चुना, कुरैश में से सैयदना अब्दुल मुत्तलिब को चुना और सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में से सैयदना अब्दुल्ला को चुना। इस चुनाव के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। दुनिया में आमद भी सबसे आला। कायनात वालों को कह दो, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, बड़ा अहम मज़मून है, बड़े अहम बातें हैं, आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। कायनात वालों को कह दो, अगर सच्चे मुहिब हो, सच्ची मोहब्बत करते हो तो महबूब के दरवाजे पे जाओ, क्योंकि जो सच्चा मुहिब होता है ना, सच्ची मोहब्बत करने वाला होता है, वो महबूब को नहीं बुलाता। तारीख उठा के देख लो, तारीख उठा के देख लो। अबू बकर सिद्दीक आए बनु तमीम को छोड़कर, मेरे मुस्तफा के दरवाजे पे आए। सैयदना उमर आए बनी अदी को छोड़कर, मेरे मुस्तफा के दरवाजे पे आए। सैयदना उस्मान गनी आए बनु उमैया को छोड़कर आए। सैयदना अली हैदर कर्रार आए, कुरैश को छोड़कर आए। बिलाल आए, हबशा को छोड़कर आए। सलमान आए, फारस को छोड़कर आए। और अबू जर आए, कबीला गफ्फार को छोड़कर आए। अबू हुरैरा आए, यमन को छोड़कर आए। जिब्राइल अमीन आए, सिदरतुल मुंतहा को छोड़कर आए, मुस्तफा की तरफ आए, दरे मुस्तफा पे तशरीफ लाए, हाजिर हुए। अगर हम भी सच्चे मुहिब हैं, अगर हम भी सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो फिर हमें भी सीरत में, आमाल में, अफआल में, किरदार में, बोलने चालने में, उठने बैठने में, तहजीब और तमद्दुन में, हर काम में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबक सीखना चाहिए। जो होता है आशिक, वो जाता है दर पर, नबी को वो घर घर बुलाता नहीं है। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या खूब अंदाज पाया है। नबियों ने तौहीद हमको सिखाई, जिस्म अपना पत्थरों से जख्मी कराकर वो कहते थे लोगों, पढ़ो ला इलाहा, खुदा के सिवा कोई दाता नहीं है। मैं मखलूक खुदा पर अपने खालिक हकीकी की इतनी करम नवाजियां हैं, इतनी नेमतें हैं, इतनी नवाजिशें हैं, इतने एहसानात हैं कि अगर जिन्नो इंस मिलकर क़यामत तक शुमार करना चाहें तो उनको गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह खुद फरमाता है, ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करने लगो, गिनने लगो, तो नेमतें गिन नहीं सकते। करम नवाजियां इतनी, तो कोई नेमत देकर एहसान नहीं अल्लाह ने जतलाया, लेकिन सिर्फ अपनों पर ही नहीं बल्कि गैरों पर भी अल्लाह ने नेमतों की बारिश कर दी है, नवाजिशों की बारिश कर दी है, गैरों को भी महरूम नहीं किया। लेकिन एक ऐसी नेमत है, तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ, एक ऐसी नेमत है कि जब वो अता की तो अल्लाह ने खबरदार कर दिया, अल्लाह ने लोगों को कह दिया, अल्लाह ने मोमिनों को इरशाद फरमा दिया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, हमने मोमिनों पे एहसान कर दिया कि उनके अंदर अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमा दिया। अल्लाह को अल्लाह फिर इस तरह इस नेमत को मुज़य्यन किया कि जहां की सारी नेमतें इस नेमत के वजूद में गुम कर दी। अगर अब्दियत नेमत है, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही कहकर इस नेमत का मज़हरे अतम बना दिया। अगर इंसानियत नेमत है तो कुल इन्नमा अना बशर मिस्लुकुम का पैगाम देकर उस पर इंसानियत को अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया। अगर नबुव्वत नेमत है तो वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन का तमगा देकर नबुव्वत को उस पर तमाम कर दिया। अगर इस्लाम नेमत है तो हिरा की तारीकी से उसकी रोशनी
रोशनी ऐसी आम की कि कुर्राए अर्ज बल्कि अर्जो समा में तौहीद और रिसालत के मीनार रोशन हो गए। अगर कुरान नेमत है अला कल्बे का के मजबूत सीने पर उसको नाजिल फरमा दिया, अगर इल्म नेमत है तो अल्लामा का मालम तकुन तालम का एजाज देकर उसको मुअल्लिम आजम बना दिया, अगर नरमी दरगुजर आपको मेहरबानी नेमत है तो हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम का उसको खिताब दे दिया, अगर बशारत और खुशखबरी नेमत है तो बशीरन की सिर्फ उसके लिए बना दी, अगर खौफे खुदाबंदी नेमत है तो नजीरन के लक़ब की तरफ निगाह उठा के देखो, तुम उसको देखोगे। अगर तबलीग नेमत है, तबलीग दीन नेमत है तो दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मनीरा का मिस्कात तुम उसको पाओगे। अगर हुस्न जमाल नेमत है तो फिर देखो तो सही ना, वो पैगंबर की सीरत को देखो, पैगंबर की सूरत को देखो, उसने बज़्ज़ुहा जैसा चेहरा है, वल्लैल जैसी काली जुल्फ है, मा कागल बसर जैसी प्यारी आंखें हैं, ला तुहर्रिक बिही जैसी नरम गुफ्तार और पुरतासीर जुबान है, अलम नशरा लका सदरा जैसा प्यारा सीना है, फराख सीना है, ताजा ताहा जैसी रोशन पेशानी है, यासीन जैसी वजाहत सिर्फ और सिर्फ उसी की है। अगर सदाकत को नेमत समझते हो तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु उसके दर का गुलाम है, अगर अदालत नेमत है तो फारूक आजम उसके दरबार का पहरेदार है, अगर गिना नेमत है तो सैयदना उस्मान गनी उसके तरबियत याफ्ता है, अगर शुजाअत और दलेरी नेमत है तो हैदर कर्रार उसका सहाबी है, अगर तदब्बर और इल्म नेमत है तो माविया बिन अबी सुफियान जैसा हलीम बुरदबार उसका पानी भरता है, अगर कुव्वत ताकत शौकत सदर हैबत जलाल जैसी नेमतें हैं तो ये सारी की सारी उसके घर की बांधियां। किस्सा मुख्तसर, गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम खूबियों का एक गुलदस्ता बना दिया और उस गुलदस्ते का नाम रख दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस जात में ये सारी खूबियां जोश मारती हो, खामियां नकाइज दूर भागते हो, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का सेहरा सजाए खुल्के अजीम के इस अजीम पैकरे आजम को देखो कि जिसका पैगाम सच्चा भी है, काबिले अमल भी है और मूजबे अमल भी है, जिसकी जात को कादरे मुतलक हकीम और खबीर जात ने उसवा हसना करार दिया, वो सरापा अबदियत, वो सरापा शराफत, वो सरापा इल्म, वो सरापा इल्म, वो सरापा मार्फत, वो सरापा हुस्न जमाल, वो सरापा शुजात, वो सरापा रहमत नजर आता है। निजाम आलम और अबदी कवानीन जिसके घर की बांदियां हैं उसकी जुबान के मरहूने मिन्नत है, बाद अज खुदा बुजुर्ग हुई किस्सा मुख्तसर। रबीउल अव्वल के महीने में वाइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन की अमली तफसीर सामने आई, इफ़ाए अहद की शक्ल में नमूदार हुआ। अल्लाह अकबर, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल की पैदाइश हुई, आप दुनिया में आए और दादा अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिलती है कि पोता पैदा हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब सबको बुलाया, ताते ताए चाचे और सारे कुरैश के सरदार सारे के सारे आए, आके बैठ जाते हैं। सरदाराने कुरैश पूछते हैं कि बच्चे का नाम क्या रखा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे अच्छा, मोहम्मद बड़ा अजीब सा नाम है, पहले कभी नहीं सुना। मोहम्मद बड़ा अजीब सा नाम है, पहले कभी नहीं सुना। मैं पास होता तो कहता कि बड़ी सुन कैसे लेते, कायनात में आज तक पहले मोहम्मद पैदा ही नहीं, आज तक कभी ऐसा पैगंबर पैदा ही नहीं हुआ। पहले अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे पहले उस बच्चे को तो देख लो, फिर तबसरे बाद में कर लेना। शायर ने बड़ी मोहब्बत से अपनी अकीदत का इजहार किया है। मोहम्मद दे चाचे ताए ते आए, मोहम्मद दे दादे, मोहम्मद दे चाचे ताए ते बाबे, बुलाए ते आए, मोहम्मद जा 7 दिन दे होए ते आए, इकट्ठी होके दावत से बहिंदे ने सारे, मोहम्मद दे दादे नु कहिंदे ने सारे, अब्दुल्ला दी बनके जो निशानी है आया, की नाम रखया लड़के दा रखया रखाया। दादे ने जो सुनया ते अगों सुनाया, मैं लड़के दा नाम मोहम्मद रखाया। मोहम्मद जो सुनया ते पै गए पुकारे, मोहम्मद दे दादे नु कहिंदे ने सारे, नाम बड़ा औखा जे आए, ये साडे नजदीक
एक अनोखा जे आए दादे ने सुनिया ते अंदर सुदाए मुहम्मद नु गोदी उठा के ले आए। ओ सरदारो जरा अखां ते चुको मेरे सोने बछड़े दा मुखड़ा ते तको जिन्हों तक तक के नहीं रजदियां अखां मैं उनका नाम मुहम्मद ना रखा ते होर की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में सबसे अजीम, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सुबह रबी की शहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में ढाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का परतो, वो रहमत का झाला, वो आदम का ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाह हैं, जमी के हसीन सब नजारे गवाह हैं। वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नजाकत उमंगों की माला, वो हर नूरी बशरी से बेहतर वाला, जो समझे कोई उसे होश वाला, वो हर मोजज़े में नबियों से आला, वो तकवीम अहसन ने सबसे निराला, वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तख्लीक कुदरत की बाहों में देखा, वो इज्जत में अव्वल, वो असमत में अव्वल, शौकत में अव्वल, इफ़्फ़त में अव्वल, रिफ़त में अव्वल, इस्मत में अव्वल, चाहत में अव्वल, कुदरत में अव्वल, यूसुफ से पहले, यूशा से पहले, साले से पहले, याह्या से पहले, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने से लगाने है आया, वो आबाद करने जहां आ गया है, वो सबकी खुशियों का सामान आ गया। वो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन आए, वो कौन आए, वो कौन आए, वो किस तरह के किंगरे गिरे जा रहे हैं, यहूदी भी देखो मरे जा रहे हैं। जमाले मुअल्ला कमाले ताला, निगाहों की जन्नत, नबुव्वत का ताला, वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, वो आखिरी रसूल, वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में सबसे हसीन मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। कुफ्र शिरक रसूमात और बिदात की तारीखियां दम तोड़ने लगी, आतश कदे बुझ गए, मसनूई माबूद औंधे मुंह जमी पर आ गिरे, बुत पाश पाश हो गए, फिस्को फजूर की मुंहजोर लहरें जो उठ रही थी बैठ गई, नफरतें अदावतें मोहब्बत और भाईचारे में तब्दील होने लगी, सरकशी नाफरमानी तस्लीम और रजा और इताअत के सांचे में ढलने लगी। फारान की चोटियों पे एक ऐसी बात गज सुनाई देने लगी कि मकसदे बेसते पैगंबर की रूह जाग उठी, हर तरफ खुदा की तौहीद का नकारा बज गया, हर तरफ तौहीद के डंके बजने लगे, माशरे से ना इंसाफी खत्म होने लगी। सीरत का मुतालिया तो करो मेरे भाइयों, ऐसे कहते हो फलां नहीं मानता, फलां इस बात को नहीं मानता, फलां इस बात को नहीं मानता। आइए मैं बताना चाहता हूँ मेरे पैगंबर की आमद का बेसत का मकसद क्या था, मेरे पैगंबर ने किस तरीके से दुनिया को अमन का पैगाम दिया है, मेरे पैगंबर ने क्या चीज दी है। अल्लाह अकबर, इंसान को अल्लाह के दर पे लाने की अमली जिद्दोजहद होने लगी, बातिल निजाम की बजाय आफाकी आसमानी निजाम नाफिज होने लगा, इंसानियत ने सुख का सांस लिया, झगड़े खत्म होने लगे। ये मेरे आका के आने की बरकत है। आज हम झगड़ों में पड़ के कहते हैं हम आका की सीरत को अपना रहे, नहीं मेरे भाई, हम आका की सीरत से दूर। मेरे आका की सीरत क्या है, इंसानियत ने सुख का सांस लिया, झगड़े खत्म होने लगे, झगड़े खत्म होने लगे, बागियों से मार्के होने लगे, बदरो हुनैन की, बदरो ओहद की वादियां तकबीर के नारों से और घोड़ों के टापों से गूंज उठी। इस्लाम आ गया, इस्लाम आ गया, हर तरफ एक ही नारा था, इस्लाम आ गया। मैं भी पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, बताओ तो सही, इस्लाम आ गया है क्या? हमने इस्लाम अपनी जिंदगियों में नाफिज कर लिया है क्या? हम इस्लाम को उस तरह मान रहे हैं जिस तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्लाम देकर गए? तवज्जो कीजिए, काश आज के मुस्लिम को भी इस्लाम की पहचान हो जाए। हर तरफ से आवाजें आ रही हैं, इस्लाम आ गया, मार्का हक बातिल हो रहे हैं, कुफर की गर्दनें उड़ रही हैं, अल्लाह की नुसरत नाज़िल हो रही है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 313 गालिब आ रहे हैं, मेरे पैगंबर के असहाब दुनिया पे छा रहे हैं और इस्लाम का हक का बोलबाला हो रहा है। वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिही की अमली तफसीर पेश की जा रही है। क्या हम इन सब बातों पे अमल कर रहे हैं जो अल्लाह के रसूल ने हमें बताई? मुसलमानों को अपने माबूद हकीकी की मार्फत हासिल हो रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके क़ुलूब का तज़किया किया है। अल्लाह अकबर रहबा बैनहुम
की अमली तफसील सामने आ रही है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, आपस में रहम दिल है, काफिरों पे सख्त हैं, वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रस्म हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। हम कैसे मोमिन हैं कि आपस में तो मार का आ रहा है और काफिरों के सामने लंबे लेट जाते हैं। इसी दौरान एक हुक्म नाज़िल होता है, तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ, बड़ी अहम बात है। भाई घड़ी की तरफ देखते रहना, मेरे पास घड़ी नहीं है, या इधर रख दो एक घड़ी ला के। इसी दौरान एक हुक्म नाज़िल होता है, अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो चीज रसूल तुम्हें दे दे वो चीज ले लो, जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। तवज्जो है ना मेरी तरफ। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म नाज़िल होता है, अल्लाह ने मोमिनीन को यह हुक्म नाज़िल किया कि जो चीज रसूल दे दे वो ले लो, जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। अब हम बताएं, हम सोचे रसूल मुकर्रम ने हमें अकीदा तौहीद दिया, हमने वो ले लिया, कुफ्र शिरक से रोका, हम रुक जाएं। रसूल ने हमें अकीदा खत्म नबूवत दिया, हम वो ले लें। इत्तदाद से रोका, हम रुक जाएं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुन्नत दी, हम ले लें। रसूमात और बिदात से रोका, हम रुक जाएं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब और सुन्नत को इख्तियार करने का हमें हुक्म दिया और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को इख्तियार करने का हुक्म दिया। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, सहाबा किराम की सुन्नत को भी लाज़िम पकड़ो। आज हम उस मकाम पे खड़े हैं, सोचने का मकाम है, समझने का मकाम है। सोचिए समझिए, जिस मकाम पे आज खड़े हैं, क्या अल्लाह के रसूल हमें उस मकाम पे खड़ा करके गए? क्या हमें वो बातें बताकर गए जो आज हम कर रहे हैं? क्या हमें वो अफ़आल बताकर गए जो आज हमसे सरजद हो रहे हैं? क्या वो काम जो आज हम कर रहे हैं अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक कर रहे हैं, खुलफा की सुन्नत के मुताबिक कर रहे हैं? नबी की खुशी का क्या ऐसा तरीका था जो आज हमारा है? नबी की गमी का वो तरीका था जो आज हमारा है? क्या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफा के तरीके से हट तो नहीं रहे? फैसला कीजिए, सोचिए, समझिए। गौर फिक्र की दावत दे रहा हूं, गौर फिक्र की दावत दे रहा हूं। कल क़यामत के दिन हमारे अमाल जब पेश होंगे, अल्लाह के रसूल भी सामने खड़े होंगे, हमारे अमाल पेश होंगे, उस वक्त हम जो अमाल कर रहे हैं, क्या अल्लाह के रसूल के सामने इन अमाल की वेरिफिकेशन दे सकेंगे? क्या जब पूछा जाएगा क्या ये सुन्नत के मुताबिक तुमने किया, हम जवाब दे सकेंगे? मेरे भाइयों, लम्हा फिक्रिया है, किसी पे कोई तान नहीं, किसी पे कोई शिकवा नहीं, किसी से कोई शिकवा नहीं है। लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। अपने अपने गिरेबानों में झांके और सोचे हम कि जो काम हम कर रहे हैं, क्या ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है? क्या ये अल्लाह के रसूल ने बताया है? क्या खुलफाए राशिदीन ने किया है? क्या सहाबा ने अमल करके दिखाया है? क्या अहले बैत ने ये काम किया है? क्या हमारे चारों इमामों ने ये काम किया है? क्या सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने ये काम किया है? क्या हमारे बुजुर्गान दीन ने, हमारे औलिया किराम ने, हमारे खित्ते के औलिया किराम ने, हमारे बुजुर्गों ने ये काम किए हैं? अगर किए हैं तो फिर खुश हो जाइए, हम सही रास्ते पे हैं। और अगर नहीं किए, तवज्जो चाहता हूं, अगर नहीं किए, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अगर नहीं किए, और यकीनन नहीं किए, कई काम ऐसे हैं जो हम कर रहे हैं लेकिन हमारे बुजुर्गों ने नहीं किए, औलिया किराम ने नहीं किए, साहबा अहले बैत ने नहीं किए, तो फिर हमें सोचना चाहिए हमारा अंजाम क्या होगा। हमें सोचना चाहिए, दावत फिक्र दे रहा हूं, हमें सोचना चाहिए हमारा अंजाम क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं हम ये सारे काम करके फिर भी नाकाम हो जाए, मोहब्बत के दावे करके फिर भी हमें नाकामी मिले। मेरे भाई सोचिए, जरा सा नहीं, पूरा सोचिए, मुकम्मल सोचिए, गौर कीजिए और अपने अपने अमाल पे हम सब गौर करें तो हमें पता चलेगा हम किस मकाम पे। क्योंकि दिल जो है ना, ये सबसे बड़ा मुफ्ती होता है, सबसे बड़ा फतवा ये दिल ही देता है। और तकवा फौकुल फतवा, फतवे से ऊपर वाला मकाम है। दिल को, अपने दिल की जांच, अपने दिल की जांच कीजिए, क्या हमारा दिल हमें ये गवाही देता है कि हम ये काम सुन्नत के मुताबिक करें, हम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आखिरी बात है, आपका मुंह मीठा करवाना चाहता हूं, ज़ौक़ के मुताबिक अल्लाह ताला हमें सच्ची मोहब्बत नसीब करे, सच्ची मोहब्बत नसीब करे, ऐसी मोहब्बत नसीब करे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अल मरउ मा मन अहब्बा, कि जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह हम सब का खात्मा बिल ईमान करे और अपने आखिरी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलिया किराम, सहाबा किराम के साथ हमारा
اٹھنا نصیب فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر، تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی، وہ آئے تو منادی ہو گئی طاہر زمانے میں، وہ آئے تو منادی ہو گئی صائم زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔